Okay, write down the question. Write down the question. Two blocks of mass 2 kg, two blocks of mass 2 kg and 5 kg 2 kg and 5 kg are connected by an identical string are connected by an ideal string passing over a pulley, passing over a pulley. The block of mass 2 kg is free to slide. The block of mass 2 kg is free to slide on a surface voice is breaking. Okay, first note down the question. Two blocks of mass 2 kg and 5 kg are connected by an string, ideal string passing over a pulley. The block of mass 2 kg, the block of mass 2 kg is free to slide is free to slide on a surface inclined at an angle on a surface inclined at an angle of inclined at an angle of 30 degree with the horizontal 30 degree with the horizontal, whereas 5 kg block hangs freely, whereas 5 kg block hangs freely. Find the acceleration find the acceleration of the system of the system and the tension in the string and the tension in the string given mu equal to 0.3, mu equal to 0.3. Try to understand the question, not try to solve. Only try to understand the question. Read the question once.
Sir, your mic is off. Oh, sorry. Now I think video is clear. Okay. The question is two block of mass 2 kg and 5 kg are connected by an ideal string passing over a pulley. The block of mass 2 kg is free to slide on a surface inclined at an angle 30 degree with the horizontal, whereas 5 kg block hangs freely. Okay, देखो कुछ इस तरह से इस तरह कुछ होगा. Okay. One block is here and second one that is hanging. Which one is hanging? 5 kg. 5 kg block is hanging. This is a string and this is the pulley. ओके थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाना क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बनाओ फिगर 30 डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल वेट mg है ना, इसका मास 2 kg गिवन है. 2 kg. This is the reaction and this is what mg cos theta and this is what mg sin theta. This is tension and this is also tension. पहले कर चुके इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा. Here given mu equal to 0.5. Draw the figure fast. Done. Okay. The question is what? Find the acceleration of the system and the tension in the string. Acceleration and tension. Let us suppose the acceleration is in this direction. Acceleration is in this direction. Complete the figure. And if the acceleration is in this direction, the block is moving upside. That means the frictional force here, some frictional force will be applied, and frictional force that will be F will be in this direction. Okay, note down. Here it is mg means capital Mg. Let us suppose this is capital M. Okay. Net force on this block. mg means 5g minus t equal to ma. 5. Let us suppose the acceleration is a 5g minus t equal to 5a. What about this net force? It is moving upside ना. ऊपर की तरफ कौन सा है? t. t माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कौन से है? कौन से है? f भी है और प्लस mg sin थीटा. mg से बल्कि नहीं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2g है ना, मास के प्लस के 2 ले लेते हैं. 2g sin 30 it is given is equals to t minus net force equal to t minus
T minus net force. There is two forces, mg sin theta, that is 2g sin 30, and plus F, that is equals to ma, यानी 2a. Okay, equation number 1 and equation number 2. Add these two equations. What you will get? 5g f plus 2g into sin 30, that is 1 by 2 is equals to 7a. यहां से कैंसिल हो जाएगा, माइनस एफ प्लस जी इज इक्वल्स टू 2a. f is equals to g minus 2a. What is f? You know very well. Mu into r, g minus 2a. Mu is what? This is 0.3, and r will be equals to mg cos 30 is equals to g minus 2. This is 0.3 multiplied by 2 multiplied by g multiplied by root 3 by 2 g minus 2a. 2 and 2 cancel, 0.3, 1.7. Uh, 0.3 multiplied by 1.73 g equal to g minus 2. मल्टीप्लाई करो इसको दोनों को. सर यहाँ पे 5g को 7a से कैसे मतलब घटा दिए हैं? यहाँ पे नहीं नहीं, ऊपर ऊपर हाँ, यहाँ यहाँ जहाँ, पे हाँ इस नहीं नहीं, बस उसके नीचे वाली, हाँ ये वाला हाँ ऐड किया ना 7a ये. है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, उसके नीचे लाइन में 5g को आप इधर ले आए हैं तो 7a माइनस 5g होगा, तो ये 2a कैसे हो गया? a और g बराबर तो है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इसको ए और इसको ए मान लिया, भी ज्यादा गड़बड़ हो गया. देख लो, हाँ हाँ 5G है, ये 7A है. देख लो फिर से इसको मैं रफ कर रहा हूँ, गड़बड़ हो गया. 5G माइनस एफ माइनस जी इक्वल टू 7. एक इसमें से कैंसिल हो जाएगा, 4G माइनस एफ इज इक्वल टू 7. 4G माइनस एफ के प्लेस पे म्यू इंटू आर हो जाएगा, म्यू इंटू mg cos 30 equals to 7. 4g minus 0.3 multiplied by 2 multiplied by g multiplied by root 3 by 2 7. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4g minus 4g minus 0.3 multiplied by 1.73 g equal to 7a. इसको मल्टीप्लाई करो, 1.73 and 0.3. 0.5, तो 0.5 ले लेता हूँ, 0.52 या 0.5. 4G minus 0.5G equals to 7 है, 3.5G equal to 7 है, A is equals to 3.4 upon 7. देखते हैं आंसर कितना आ रहा है, G के फॉर्म में आ रहा है कि कैसे आ रहा है. G के फॉर्म में तो नहीं है, 4.8. देख लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34 अपॉन 7. अप्रोक्सीमेटली 5 आ रहा है ना, ठीक है.
अप्रोक्सीमेटली 5, 4.87, 4.9 के आसपास है ना। मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन किया, आप लोग एक्यूरेट करोगे। टी टेंशन भी कैलकुलेट करो, किसी भी इक्वेशन में। इस इक्वेशन में तो आसान इजीली कैलकुलेट होगा। बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन? पुट द वैल्यू ऑफ a in this equation, and after that you will get the answer. Try to solve fast. $25, हाँ अप्रोक्सीमेटली 25। गुड, वेरी गुड। सिंपल है यार, कैलकुलेशन करना चाहोगे तो कर लोगे। इसको मैं रब करने जा रहा हूँ। कोई किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को फिर से समझना हो तो बताओ। इक्वेशन बनाने में कई प्रॉब्लम, मेन इसमें इक्वेशन बनाना, बाकी सोल्यूशन तो कोई भी कर सकता है। इन दोनों इक्वेशन बनाने में किसी को प्रॉब्लम हो कि सर ये यहाँ पे ऐसे क्यों दिया गया, यहाँ पे ऐसे क्यों दिया, मैं अभी रुक जा रहा हूँ, बताओ। कोई दिक्कत नहीं, पूछो, बता दूंगा मैं। मतलब सबको समझना है, चलो बड़ी अच्छी बात है। गुड। हाँ 25 के आसपास आएगा, मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन किया है। देखो, टी की वैल्यू, अब टी की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 25 न्यूटन है। ओके, राइट डाउन हेडिंग। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, angle of friction. The angle of friction may be defined as the angle of friction may be defined as the angle which the resultant of the which the resultant of the limiting friction and normal reaction, limiting friction and normal reaction makes with the normal reaction, makes
with the normal reaction. Sir, limited Limiting, limiting limiting, limiting friction. limiting friction and normal reaction, sir, after Defined as the angle which the resultant of limiting friction and the normal reaction makes with the normal reaction. लेट अस सपोज ये एक ब्लॉक है ग्राउंड पे रखा हुआ, सब लोग जानते हैं. दिस इज अप्लाइड फोर्स एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी फ्रिक्शनल फोर्स, है ना. एफ मैक्स यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन. जिस टाइम पे एफ मैक्स लग रहा होगा उस टाइम पे रिएक्शन भी होगा कुछ इसका, बोलो, इसका कुछ वेट भी होगा, वेट एंड रिएक्शन. बोल रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ हो, ये होगा. दिस इज व्हाट, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन. बीच वाली लाइन किसकी है बताओ, बीच वाली लाइन है हमारी, बीच वाली जो एरो है, that is the resultant of F max means limiting friction and normal reaction. ये बोल रहा है कि एंगल, कौन सा एंगल, किसके किसके बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन. किसके किसके बीच का, रिजल्टेंट ऑफ व्हाट, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन. लिमिटिंग और नॉर्मल रिएक्शन के का जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बनाता है, किससे, नॉर्मल रिएक्शन से. यानी रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मीन्स ये कितना एंगल बनाता है, किससे, नॉर्मल रिएक्शन से. बस, ठीक है. कोई दिक्कत है किसी को. tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर के लिए एफ मैक्स हो जाएगा, बोलो, और बेस के लिए आर हो जाएगा. तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ मैक्स बाई आर. बता, कोई प्रॉब्लम है, ये बताओ. एफ मैक्स बाई आर ही क्या होता है हमारा, म्यू एस स्टैटिक, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी tan थीटा अगर हमको निकालना हो तो म्यू हमारा डायरेक्टली हो जाता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. tan थीटा इक्वल्स टू स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी द रेशियो ऑफ द एफ मैक्स टू द नॉर्मल रिएक्शन. Okay, write down next. Angle of repose. Angle of repose.
एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है देखो, पहले समझना, बनाना नहीं। दिस इज द इंक्लाइंड सरफेस एंड दिस इज द एंगल थीटा। इस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है। हम जानते हैं कि किसी भी इंक्लाइंड सरफेस पे, सपोज ये इंक्लाइंड सरफेस है, किसी ब्लॉक को अगर रखते हैं तो इंक्लिनेशन, एक इंक्लिनेशन के बाद, एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन के बाद क्या होता है, ये स्लाइड डाउन हो जाता है। समझ बात में, अगर ऐसे रखा जाए एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन के बाद एक करता है स्लाइड डाउन, पता है ना। देखो मैं यहाँ रख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। मैं जैसे इसको थोड़ा सा इंक्लाइन किया, इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। देखो आप लोग कर चुके हो आप लोग, दैट इज mg, this will be what, mg cos theta, and this will be what, mg sin theta. Means mg sin theta is trying to push the block downside. As we increase theta, sin theta will also increase. That means the force which is trying to slide down the block will also increase. जैसे जैसे हम इंक्लिनेशन को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इधर की तरफ ये जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या करेगा, बढ़ता चला जाएगा। और इधर की तरफ अगर फोर्स लग रहा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा लगेगा वो कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। समझ रही बात है। लेकिन ये ये जब ये चलने वाला होता है, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये जस्ट चलने वाला होता है, यानी इसको हम क्या करें, इंक्लाइन, इसके इंक्लिनेशन को इंक्रीज करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए, when the block is about to slide, when the block is about to slide, at that instant the angle will be the angle of repose. समझ में आया? यानी इंक्लिनेशन वाला जो एंगल है वो हमारा एंगल ऑफ रिपोज हो जाता है जब हम उसके इंक्लिनेशन को बढ़ाते 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 एक पर्टिकुलर थीटा पे पहुंचे, जब ये ब्लॉक क्या हो, जस्ट चलने वाला। यानी इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो ये स्लाइड कर दें, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसको रोके हुए। लेकिन जब हम इंक्लिनेशन को बढ़ाएंगे तो mg sin थीटा बढ़ते 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 एफ मैक्स के बराबर हो जाएगा, बोलो। तो जब भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो वही एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले डायग्राम बनाओ, साइड में डायग्राम बनाओ, फिर बताता हूं मैं आपको। Write down the definition. It is the minimum angle. It is the minimum angle that it is the minimum angle that an inclined plane makes, that an inclined plane makes with the horizontal when with the horizontal when a body placed on it, when a body placed on it just begins to slide down, just begins to slide down.
just begins to slide down. Mg sine theta, that will be equal to F max mg sine theta mu into r. mg sine theta is equals to mu या म्यू एस भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू स्टैटिक ही होता है, म्यू एस कह लो, म्यू एस आर इन प्लेस ऑफ आर, बताओ यहाँ पर फिगर कंप्लीट कर लेना, आर विल बी व्हाट, एम जी कॉस थीटा, ठीक है, एम जी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस, और एक नहीं है, angle of repose or angle of friction both are same. Angle of repose is equal to the angle of friction. You can write angle of repose is equal to angle of friction. Okay. Okay, write down the question. Write down one question. Find the distance traveled by the body. Find the distance traveled by the body. Find the distance traveled by the body before coming to rest. Before coming to rest, if it is moving well, if it is moving well, a speed of 10 meter per second. If it is moving well, a speed of 10 meter per second. And the coefficient of friction and the coefficient of friction between the ground and the body is between the ground and the body is 0.4. 0.4. Do yourself. Do yourself.
हाँ बताओ, नहीं हुआ? देखो, इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ी है, देना चाहिए था उसको, है ना। ब्लॉक जो है, मान लेते हैं ऊपर की तरफ जा रहा था, अब जाकर रुक जाएगा, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ हो जाएगा, एफ। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ इसको। या ऐसे भी मान सकते हो, चलो दिया हुआ है ना। बैकवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इधर इधर की तरफ अगर एक्सेलरेशन है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि एक ही फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और किसके बराबर होगा? एम ए के बराबर होगा। म्यू इंटू आर इक्वल टू एम ए, सॉरी एम ए, म्यू इंटू एम जी इक्वल टू एम जी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, इंक्लाइन नहीं मानेंगे। एम ए, एम से एम कैंसिल, यानी ए इक्वल टू म्यू इंटू जी हो जाएगा, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v square minus u square equal to 2s, v given has 0, स्टॉप कर जाता है ना रेस्ट पे, और u दिया है ना शायद 10 मीटर पर सेकेंड, u 10 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू एस। एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन है ना। एक माइनस लगा दो, चार चार, तो यहाँ पे माइनस लगा दो डायरेक्ट, 2 इंटू माइनस 4 इंटू एस, s equal to 10 multiplied by 10 upon 2 multiplied by minus and minus cancel 4, 25 by 2, 12.5 मीटर। 12.7 है हमारा, 9.8 नहीं किया क्या? और 9.8 में करोगे तो हो सकता है, if you're taking 9.8 there may be। Okay, write down last, next and last।
A suitcase is gently dropped on a conveyor. A suitcase is gently dropped on a conveyor belt. On a conveyor belt. Moving at 3 meter per second. If the coefficient of moving at 3 meter per second, if the coefficient of friction between the belt, if the coefficient of friction between the belt and the suitcase is 0.5, belt and suitcase is 0.5, how far will the suitcase move? How far will the suitcase move on belt before coming to rest? Before coming to rest. Sir, how far will the How far will the suitcase move on the belt before coming to rest? Before सर फाइंड हाँ फाइंड क्या वो नहीं लिखा तुम लोग फिर से बोलता हूँ a suitcase is gently dropped on a conveyor belt moving at 3 meter per second. If the coefficient of friction between the belt and the suitcase is 0.5, how far, F-A-R है far, F-O-R नहीं, how far will the suitcase move on the belt before coming to rest? This is the question. First, try to understand the question. First, try to understand the question. सेम टाइप क्वेश्चन आएगा ना, सेम टाइप, एकदम सेम, एकदम सेम क्वेश्चन. करो, करके बताओ आंसर कितना है. सब कुछ वही है. ये वो भी लगाना है, ए निकालो पहले, फिर इस वाले फॉर्मूले पे ए नेगेटिव में रख दो, आंसर आ जाएगा 0.9. देखते हाँ 0.92. गुड. हाँ 0.92 आ रहा है. गुड, वेरी गुड, वेरी एकदम सेम क्वेश्चन है. इसमें कोई ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस माइनस का डिफरेंस, बस वैल्यूज का डिफरेंस है, बाकी पैटर्न वही. गुड गुड गुड. चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे, मीन्स टुमारो. आज के लिए बस इतना ही. Okay, after writing your attendance, you may leave the class. Write your attendance and leave the class. Thank you.